Hi everyone, this side Ayushi Singh. Today I will be discussing on the topic demonetization या फिर हम कह सकते हैं we will be talking about the features of demonetization. आपको demonetization के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा because it took place during 2016. तो अभी कुछ ही साल हुए हैं जब ये situation हुई थी. This topic is considered in business environment क्योंकि this is related to money, demonetization is related to money and money related जितनी भी activities हैं that comes under economic activity of the business environment. तो demonetization ने क्या impact डाला, क्या effect डाला हमारी economy में, we'll be talking about all these things here, but we are talking about the feature and what is demonetization. So impact और disadvantage advantage हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे. So what is demonetization? Demonetization क्या है? See, when Honorable Prime Minister Modi ji took that step कि 500 के नोट को और 1000 के नोट को इनवैलिड कर दिया गया, वैल्यूलेस कर दिया गया. नाउ न्यू करेंसी वाज अवेलेबल. 500 का और 2000 का नोट न्यू बनाया गया, न्यू करेंसी बनाई गई. तो जितने भी लोग 1000 और 500 के नोट रखे हुए थे, दे एंटर्ड इनटू द बैंक और अपनी नोट को एक्सचेंज किया, चेंज किया, न्यू करेंसी ली और वो सब इसी एक्टिविटी में कुछ दिन के लिए लग गए क्योंकि most of the people are having bulk amount of the money at their home. तो वो लोग जो हैं अपना रोज एक्सचेंज करते थे, रोज अपना न्यू अमाउंट ऑफ द मनी लेकर आते थे, न्यू करेंसी ऑफ द जो चेंज हुई थी वो लेकर आते थे. So this whole situation of exchanging the money, exchanging the old notes, old currency to the new currency, new notes was termed as demonetization. So demonetization was done so that करप्शन रिड्यूस करा जा सके, जो गलत फ्रॉड हो रहा था वो सब रिड्यूस करा जा सके, इलीगल एक्टिविटीज रिड्यूस करी जा सके, जो ब्लैक मनी हमारे मार्केट में एंटर कर चुका था वो कम किया जा सके और जो फ्रॉड फेक मनी और फेक 500 का नोट 1000 का नोट आ चुका था हमारे मार्केट में वो भी वैल्यूलेस हो जाए. सो इन दिस वे डिमोनेटाइजेशन टुक प्लेस और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया गया. सो इफ वी टॉक अबाउट डिमोनेटाइजेशन, 86% of the money was withdrawal at the time of 2016 and that money was kept in the bank. और इस वजह से हमारी इकोनॉमी में जो मनी जो ब्लॉक करके हुए लोगों ने रखा हुआ था ना, दैट एंटर्ड इनटू आवर इकोनॉमी, वो फ्लो होने लगा हमारी इकोनॉमी में, चैनलाइजिंग टुक प्लेस इन आवर इकोनॉमी. सो डिमोनेटाइजेशन वाज हेल्पफुल इन दिस वे. तो हम जो टैक्स के सिस्टम था उसको भी इंप्रूव कर पाए, टैक्स को एक सिस्टमैटिक वे में लेकर आ पाए, जो टैक्स की चोरी होती थी वो भी कम कर पाए, जो हम कैश कैरी करते थे बहुत प्रॉब्लम होती थी, चोरी हो जाता था कैश, घर से भी चोरी हो जाता था, वो सब चीजें भी हम रिड्यूस कर पाए. पॉकेट में जब कैश रखते थे तो पॉकेट मारकर चले जाते थे, कैश को लेकर चले जाते थे, वो भी कम हो गया. सो इन दिस वे डिमोनेटाइजेशन वाज हेल्पफुल इन दिस वे. और डिमोनेटाइजेशन ने हमारी इंडिया को थोड़ा डिजिटलाइज भी कर दिया. अब नाउ वी आर पेइंग ऑनलाइन, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, सब चीजें ऑन पेपर हैं. तो डिमोनेटाइजेशन was done by Honorable Prime Minister Modi ji to improve our economy in this way. Okay, so we'll be talking about example later. पहले हम इसको read कर लेते हैं. Removing a monetary unit's legal tender status is known as demonetization. It happened each time the country's currency is changed. The present currency is removed from use and retired frequently to replace with fresh coins and banknote. Occasionally, a nation will entirely switch from one currency to the another. Demonetization has been a method for fighting inflation, stabilizing the value of money, opening up marketplace to trade and moving informal economic
economic activity away from hidden and shadow market and towards greater openness. Demonetization can also be used to stop illegal activities including tax evasion, terrorism, and fraud. Now we'll be talking about the example of demonetization. One of the good example of demonetization is India during November 2008, 2016, November 8 में demonetization took place जब 500 का नोट 1000 का नोट बिल्कुल इनवैलिड हो गया था और न्यू नोट बनकर तैयार किए गए थे. 1000 के तो नहीं बने थे, 2000 के बने थे और 500 के बने थे. तो एवरी पर्सन, जो भी लोग छुपाए हुए थे उस मनी को, वो सब लोग बैंक में सबमिट कर रहे थे उस अमाउंट ऑफ मनी को. तो क्या हो रहा था, जो लोग ज्यादा बल्क अमाउंट ऑफ मनी छुपाए हुए थे उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था उस मनी पर, और उन पर फाइन भी चार्ज किया जा रहा था कि आपके पास इतना मनी आया कहां से. सो डीमोनेटाइजेशन ने टैक्स की सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की. टैक्स, जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे, जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, उस चीज को इंप्रूव किया, करप्शन को कम किया, ब्लैक मनी को हटाया, फेक जो नोट बन गए थे उनको भी रिड्यूस, बिल्कुल खत्म कर दिया. सो इन दिस वे इंडिया में 86% ऑफ द कैश वाज विड्रॉल एट द टाइम ऑफ 2016, जब हमारी इकोनॉमी में 86% ऑफ द मनी एंटर्ड इनटू आवर इकोनॉमी और सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया डिमोनेटाइजेशन की वजह से. So we are talking about all these things here. So this is the example of demonetization. On November 8, 2016, the Indian government announced the demonetization, which had a significant impact on the country's economy. With the immediate effort, the government announced that the two highest denomination note highest 50 का होता है, 10 का होता है, 100 का होता है. So these are the note जो थोड़े लेस वैल्यू नोट होते हैं, बट हाईएस्ट जो हमारे इंडिया में डिनोमिनेशन नोट थे वो थे 500 और 1000 के नोट. तो उनको इनवैलिड करके 2000 का नोट और 500 का नोट एक न्यू करेंसी के तौर पर बनाया गया. सो 1000 would no longer be accepted as legal money with the exception of a few specified use like paying utility bills. See, this 500 note or 1000 ka note was accepted only for paying utility bills. Utility bills are what? जो water bill है, gas bill, electricity bill, जो भी household bills थे ना, उनके लिए इस money को use किया गया और ये कहीं और यूज नहीं किया गया. Nobody can use this note जो invalid बना दिया गया है. Nobody can use that note anywhere else. Okay, so as a result 86% of the money was in bill in circulation. Along with the limitation on the cash withdrawals, Indians were required to deposit the invalid currency in the bank. Demonetization was implemented with the intention of limiting corruption, fraud, the use of the large denomination note for criminal activities, and the most importantly the rise in the black money resulting from the unpaid taxes. See, जो criminal activities होती थी वो ये जो लार्ज हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट था ना 500 का और 1000 का, वही उन क्रिमिनल्स को दिया जाता था मोस्टली सो एज टू डू दीज एक्टिविटीज. तो वो सब भी स्टॉप हो गया. जो टैक्सेस की चोरी कर रहे थे वो सब भी स्टॉप हो गया, करप्शन स्टॉप हो गया, ब्लैक मनी जो हमारे मार्केट प्लेस में एंटर कर चुका था वो स्टॉप हो गया, जो फेक मनी बनकर, जो फेक नोट बन के तैयार हो रहा था और रोज हमारे मार्केट में उसका यूज हो रहा था और लोग परेशान होते थे उस नोट से, वो भी फिनिश हो गया. सो इन दिस वे इंडिया इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ डीमोनेटाइजेशन. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट features of demonetization. Tax administration measure. When demonetization took place, तो टैक्स के सिस्टम को प्रॉपर कर दिया गया, टैक्स अच्छे से एडमिनिस्टर हो पाया. टैक्स को एक प्रॉपर सिस्टम में, एक प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया. कैसे? When
500 का नोट और 1000 का नोट जब बंद हो गया तो जितना भी अमाउंट ऑफ मनी वाज केप्ट इन द हाउसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल, तो वो लोग उस मनी को बैंक में लेकर आए, सबमिट किया उससे और न्यू करेंसी अपनी ली उन्होंने। तो क्या हुआ, वो जो मनी था, जो बल्क अमाउंट ऑफ द मनी था दैट एंटर्ड इनटू द इकोनॉमी, जब हमारी वो इकोनॉमी में एंटर कर गया, वो तो ब्लॉक कर रखा था बहुत सालों से मनी लोगों ने, क्योंकि वो क्या था, वो इलीगल एक्टिविटीज या मे बी ब्राइब, किसी से ब्राइब लेकर, किसी से रिश्वत वगैरह लेकर वो जमा किया हुआ था, मे बी गुड एक्टिविटीज के थ्रू भी था, एग्रीकल्चर के बिजनेस के थ्रू या कोई और बिजनेस चल रहा था, बट पीपल डोंट वांट टू शो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द बिजनेसेस, क्योंकि क्या होता है कि उन्हें फिर वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्या होता था कि पीपल वांट्स टू सेव दैट मनी इन देयर लॉकर इन द हाउसेस, तो क्या होता था कि वो मनी एक तरीके से ब्लॉक हो गया अब बहुत सालों के लिए। जब वो इंसान कुछ परचेज करेगा तभी वो उस मनी को यूज करेगा, तो इतने अमाउंट ऑफ द मनी पर वो लोग टैक्स देते थे, बट इतना अमाउंट ऑफ द मनी विच वाज केप्ट इन द हाउसेस वो सब एक तरीके से ब्लॉक हो गया। तो अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ वो मनी बाहर निकल कर आया, बैंक में जब सबमिट किया गया उसके ऊपर टैक्स भी पे किया उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने टैक्स भी चार्ज किया कि ये मनी आपके पास कहां से आया है, और इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी यू आर कैरिंग एट योर होम, तो अब तुम इस पर फाइन भी पे करो। सो इन दिस वे गवर्नमेंट ने भी अपना शेयर ले लिया। सो टैक्स ऐसे अपने एक प्रॉपर सिस्टम बन गया, टैक्स का एक प्रॉपर वे में टैक्स को एडमिनिस्टर कर लिया गया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन ने हेल्प किया टैक्स को एक अच्छा सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करने में। ओके, टैक्स एविएशन कंट्रोल सेज व्हाट, सी टैक्स एविएशन कंट्रोल सेज दैट जब भी कोई टैक्स की चोरी करता था तो वो बहुत आराम से सक्सेसफुल हो जाता था। वो क्या करता था, अपनी सैलरी जितनी भी वो कमाता था वो उतना दिखाता था और कहता था आई वाज अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ द मनी, आई कैन पे फॉर दिस अमाउंट ऑफ मनी ओनली। तो वो उसी अमाउंट ऑफ मनी पर टैक्स पे करता था। जो अमाउंट of money that person was earning through agriculture or by any kind of the illegal activity या कोई भी bribe लेना या किसी भी तरीके का गलत एक्टिविटी से पैसे कमाए हुए थे, वो सब वो घर पर इकट्ठा करके रखे हुए होता था, तो वो मनी पर वो कोई टैक्स पे नहीं करता था। नाउ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वो मनी वैल्यूलेस हो गया। जब तक वो मनी वैल्यूलेस है तब तक तुम उसको चेंज नहीं कर लेते न्यू करेंसी से, तो वो लोग बैंक में पैसे को लेकर आए, अपने पैसे को एक्सचेंज करा, न्यू मनी, न्यू करेंसी, न्यू नोट्स को लिया एक्सचेंज करके। तो क्या हुआ, वो जो मनी इकट्ठा किया हुआ था वो हमारी इकोनॉमी में एंटर कर गया, ड्यू टू विच अब उसका तुम्हें टैक्स पे करना है, और जितना अमाउंट ऑफ मनी यू आर सबमिटिंग टू दैट पर्टिकुलर बैंक, अब तुम उसका फाइन भी पे करो, क्योंकि इतना मनी आपके पास आया कहां से। सो इस तरीके से अब टैक्स की चोरी होनी कम हो गई। नाउ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, मोस्ट ऑफ द थिंग इज डिजिटलाइज्ड। अब एवरीथिंग इज ऑन पेपर, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। तो जब भी तुम कुछ परचेज करते हो या जब भी तुम कोई एक्टिविटी करते हो, बिजनेस बनाते हो, कुछ कोई भी चीज कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो, इंडस्ट्री बना रहे हो या किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हो, नाउ दैट इज all on paper, or you will have to pay tax for that particular business or that particular thing जिससे तुम पैसा earn कर रहे हो। तो in this way demonetization is helpful। Now demonetization has been spoken of as a tax management strategy due to their disclosed income. Those who had cash on hand immediately deposited it in the bank and exchanged it for the fresh money. On the other side, those who possessed unexplained cash were required to disclose it, pay taxes and pay a fine. Tax evasion control measure. Demonetization is the another name for the government's attempt to stop tax evasion or the illegal avoidance of the taxes. Tax evasion is an
intentional denial of paying one's actual tax obligation by an individual or the organization. People who are discovered to be tax cheats typically face serious criminal charges and heavy fine. जो भी लोग पकड़े जाते थे टैक्स की चोरी करते हुए उनको हेवी चार्जेस पे करने पड़ते थे या फिर वो क्रिमिनल चार्जेस पर उनको पनिशमेंट दिया जाता था. ओके, नाउ channelizing savings into the formal financial system. See, when demonetization took place, जो मनी ब्लॉक्ड था वो मनी बैंक में सबमिट किया गया, बैंक से न्यू करेंसी ली गई, तो जितना भी ब्लॉक्ड मनी था, जितने भी लोगों ने सेविंग्स रख रखी थी वो सारी सेविंग्स बैंक में सबमिट हुई. उसकी जगह जो मनी लोगों ने वापस लिया, न्यू करेंसी ली, वो मनी अब जो ब्लॉक्ड मनी था वो तुम्हारे सर्कुलेशन प्रोसेस में आ गया, वो तुम्हारा अब सर्कुलेट कर रहा है, तुम्हारी इकोनॉमी में मनी फ्लो होने लगा. विच मीन्स व्हाट? चैनलाइजिंग. तो चैनलाइजिंग दी सेविंग, वो जो सेविंग लोगों ने रखी हुई थी वो चैनलाइज हो गई. नाउ दैट सेविंग इज सबमिटेड इनटू द बैंक एंड द न्यू करेंसी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल जो लोग इकट्ठा किए हुए थे मनी. तो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन 86% ऑफ द मनी वाज विड्रॉल और 86% ऑफ द मनी पूरा जो सर्कुलेशन था उसमें 86% ऑफ द मनी जो था वो जो इनवैलिड बना दिया गया था, वो 500 और 1000 का नोट, वो अब हमारे इकोनॉमी में एंटर कर गया, जिसकी वजह से मनी चैनलाइज हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी का फ्लो होने लगा. सो दिस इज टर्म्ड एज चैनलाइजिंग. सी, इफ आई टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ लेस कैश इकोनॉमी मीन्स व्हाट? आफ्टर डिमोनेटाइजेशन डिजिटलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन, अभी भी है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन टुडे ऑल्सो, बट डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हमें पता लगा अबाउट द पेटीएम, गूगल पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स तो वी वर यूजिंग एट दैट टाइम ऑल्सो, बट पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई जो है बहुत कम लोगों को पहले पता था. अब नाउ एवरी सिंगल पर्सन नो अबाउट दिस गूगल पे, दिस यूपीआई कैसे करते हैं, कैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैसे तुम अपने कार्ड को यूज कर सकते हो, कैसे चीजों को जब तुम शॉप पे जा रहे हो कैसे आप स्कैन करके उसका पेमेंट कर सकते हो. तो ये सब चीजें आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इंक्रीज हो गई. पहले तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द पीपल, स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल वर यूजिंग दीज काइंड ऑफ द थिंग्स. अब एवरी सिंगल पर्सन इज यूजिंग पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई. तो क्या हुआ? आफ्टर डिमोनेटाइजेशन हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो गई. मोस्ट ऑफ आवर इकोनॉमी इज कैशलेस. ये और भी बढ़ेगा, ये सिचुएशन और भी इंक्रीज होगी. मे बी बाद में कैश हमें देखने को ही ना मिले. अभी तो हमारे पास कैश होता है बट बाद में हमें मिलेगा ही नहीं देखने को. तो क्या हुआ? जो कैश हम पॉकेट में रखकर लेकर जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, अब पॉकेट मार भी नहीं बचे हैं. अब बहुत कम लोग पॉकेट मार पाते हैं, ना के बराबर ही हो गया है. जो कैश हम घर में रखते थे वो चोरी हो जाता था, वो भी रिड्यूस हो गया. जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, वी यूज टू परचेज एनी काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, तो हम जब उसका पेमेंट करते हैं लोगों के पास उसका चेंज नहीं होता. वो कहते हैं ये टॉफी ले जाओ, ये बिस्किट ले जाओ. नो, नथिंग इज लाइक दैट नाउ. अब क्या है? अब नाउ यू कैन पे, यू कैन स्कैन योर फोन और आप उसके थ्रू एग्जैक्ट पेमेंट कर सकते हो जितना तुम्हारा बिल बनकर आया है. सो इन दिस वे creating a less cash economy by demonetization. See, we'll be talking about demonetization more in next video, but आज हमने सिर्फ features और demonetization के बारे में बात किया है. People can direct their saving into the established financial system with the aid of demonetization. Thus, some of the fresh deposit might be utilized to reduce new profitable program and provide loans with lower interest, creating a less
Cash economy says that demonetization increases the possibility of a cashless economy by encouraging people to channel more saving through the official financial system. As a result, digitalizing transactions helps bring about a formal economy even in the face of the obstacles such as lack of the cell phone, POS equipment, internet connectivity. Okay, so we'll be talking about more the impact of demonetization के बारे में बात करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, बट अब हम यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन फिनिश करते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.